નમસ્કાર, હું અનિશા, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો યુનિવર્સિટીની કોમ્યુનિટી સાયન્સ દ્વારા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલ, ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી સાયન્સ, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા અને ટ્રેડ ફોરમ ઇન્ડિયા તેમજ ધરોહર ફાઉન્ડેશન તેમજ વડોદરા પ્રોજેક્ટના સ્ત્રી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત એમઓયુ કરવામાં આવ્યું. સામાજિક પરિવર્તન અને મહિલાઓનું આર્થિક સશક્તિકરણ હેઠળ ત્રણેય સંસ્થાના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એમઓયુ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિતિમાં રાજેશ કુમાર પ્રમુખ, ફેર ટ્રેડ ફોરમ ઇન્ડિયા, ડોક્ટર કે એમ ચુડાસમા, રજિસ્ટ્રાર એમએસ યુનિવર્સિટી, પ્રોફેસર ડોક્ટર અંજલિ કરોલિયા, Dean of Faculty of Family and Community Science, અને રણવીર સિસોદિયા, સ્થાપક ડિરેક્ટર, ધરોહર ફાઉન્ડેશન, વેસ્ટ ઝોન સ્ટ્રી પ્રોજેક્ટ વડોદરા સહિત મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ મૃણાલિની દેવી, પુઆર ઓડિટોરિયમ, ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી સાયન્સ, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં યોજવામાં આવ્યો હતો. તમામ જે લોકો છે તેમની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ થયો છે. યુનિવર્સિટીના ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલ વિભાગની વિદ્યાર્થીનીઓ આદિવાસી મહિલાઓને ડિજિટલી સશક્ત બનવામાં મદદ કરશે. એમએસ યુનિવર્સિટીની હોમ સાયન્સ ફેકલ્ટીના ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલ વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારની મહિલાઓ માટે કામ કરતી સંસ્થા ફેર ટ્રેડ ફોરમ સાથે સંલગ્ન વડોદરાની સંસ્થા ધરોહર ફાઉન્ડેશન સાથે આ એમઓયુ છે તે કરવામાં આવ્યું. મહિલાઓ સાથે કામ કરવાની તેમજ તેમને પરંપરાગત કલાઓને જાણવાની તક મળશે. May I now request Ms. Shubha. आपको पूरा इतिहास भी जानने की ज़रूरत है. जैसा मैडम ने कहा कि मैं आई बिगन माई करियर एज एन इंजीनियर, सो मुझे क्राफ्ट से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था, मुझे ज़्यादा परिचय नहीं था. इट्स ओनली जर्नी ऑफ लास्ट 9 years. और कहते हैं कि मेरा जो रोमांस है इंडियन हैंडीक्राफ्ट के साथ में अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है. Teachers of the faculty and the guests on the dais. See, somebody from Navy. એમઓયુ આજે થયું છે જે ફેર ટ્રેડ ફોરમ ઇન્ડિયા, ધરોહર ફાઉન્ડેશન અને એની સાથે સાથે આપણા એમએસ યુનિવર્સિટીનું ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલ ડિપાર્ટમેન્ટની સાથે આજરોજ આ જે ઐતિહાસિક ઘટના ઘટી છે, કારણ કે આ 2019થી પ્રયત્ન સતત ચાલતા હતા વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે ગ્રાસરૂટનું નોલેજ આપી શકાય. આપણા ત્યાં આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે ભણી રહ્યા છે એ ભણ્યા પછી એ લોકોને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે એના માટેનો પાયો છે આ. એટલે ગામડાની અંદર જે હસ્તકલાના કારીગરો કામ કરી રહ્યા છે એ કારીગરોને ડિઝાઇન ઇનપુટની જરૂરિયાત હોય છે, માર્કેટિંગની જરૂરિયાત હોય છે. ફાઉન્ડેશન એમ લોકોને આ બધા જ પાયાઓની અંદર મદદ કરે છે, પરંતુ ટેકનિકલ અને પ્રોફેશનલ ઇનપુટ ક્યાંથી મળશે? તો હોમ સાયન્સ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ આજથી શરૂઆત કરશે અને એક નાનું ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર જેવુંની રચના થશે, જેનાથી બાળકોને સીધું ટ્રેડ શું થાય એટલે આવનારા દિવસોની અંદર જે મોટા મોટા બ્રાન્ડ આજે બની રહ્યા છે, બાળકોને ખબર પડશે કે ગામડાઓની અંદર આપણે એમની સાથે કામ કરીને એમને પણ મદદ થશે અને સાથે સાથે એમનો પણ વિકાસ થશે. એટલે ફાઇનાન્શિયલી પણ એ લોકો ખૂબ આગળ વધી શકશે અને સીધું જ પ્રોડક્શન કોણ કરવાનું છે એ બધી જ જગ્યાના નિવારણ માટે આજે આ એક ખૂબ મજાનું આયોજન કર્યું છે અને છેલ્લા 3 વર્ષની મહેનત પછી આ એક સક્સેસ આપણે મેળવ્યું છે. जो हमने किया है फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के साथ और धरोहर फाउंडेशन के साथ, तो ये एमओयू बेसिकली स्त्री प्रोजेक्ट के लिए है. जो स्त्री प्रोजेक्ट मैंने जो द होल फॉर्म ऑफ स्त्री प्रोजेक्ट इज़ दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन for and economic empowerment of women artisans in India, pan India. तो ये यूरोपियन यूनियन से फंडेड है और बेसिकली इसमें जो पूरा जो एमओयू के हिसाब से जो हम काम करेंगे फेयर ट्रेड फोरम के साथ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स, इज़ फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द आर्टिजन्स एंड द कम्युनिटी एंड द हैंडीक्राफ्ट्स. उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए अंडर द 10 बेसिक प्रैक्टिसेस की ट्रेड फेयर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए
और कोई विमेन एम्पावरमेंट हो, दैट दे गेट इक्वल वेजेस, उनका एम्पावरमेंट हो कि सेम जैसे आदमियों को मिलता है वैसे ही, चाइल्ड लेबर ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखे। तो एंड सस्टेनिंग अपने जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके इसमें वी विल बी ट्राइंग टू डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिसर्चर्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन ऑफ द क्राफ्ट्स की हाई एंड मार्केट के लिए, नीश मार्केट के लिए हम प्रिपेयर करें प्रोडक्ट्स। मैडम दूसरा है कि खास करके जो आदिवासी विस्तार में उस तरह में किस तरह का आपके यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हो किस तरह का प्रोजेक्ट आदिवासी कम्युनिटीज़ बहुत दे आर इन्वॉल्व इन हैंडीक्राफ्ट्स, तो इनके भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस जो बनेंगे, उनमें वी विल बी टेकिंग अप दीज प्रोजेक्ट्स फॉर द अपलिफ्टमेंट। तो ये जैसा मैडम ने बताया कि इसमें 3 जो पार्टी हैं, एक तो फेयर ट्रेड फोरम इंडिया और ये जो विश्वविद्यालय है और धरोहर फाउंडेशन है, ये तीनों ने मिलकर के इस बीड़ा उठाया है कि कैसे जो फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं या फिर कैसे सशक्तिकरण किया जाए गाँवों को, आर्टिसंस को, उसको कैसे मजबूत किया जाए। फेयर ट्रेड फोरम इंडिया जो है वो करीबन 103 संस्थाएं पूरे देश भर के हैं, उन सारी संस्थाओं के ऊपर में काम करती है। करीबन 2 लाख से ऊपर आर्टिसन उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते थे, आज हमने सोचा कि जो फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं कि महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन से आगे बढ़ करके हम लोगों को आजीविका का जो एक अच्छा वेतन, उचित वेतन है वो मिलना चाहिए, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पूरे सप्लाई चेन में, या फिर हम इसकी बात करते हैं कि कैसे वातावरण के लिए हम रिस्पेक्ट करें। ये 10 प्रिंसिपल्स हैं फेयर ट्रेड के। और हम लोगों ने सोचा कि कैसे ट्रेड कैन बी फ्री एंड ट्रेड कैन बी फेयर एट द सेम टाइम। दोनों हो सकता है, उचित भी हो सकता है और हम लोग फ्री जो ट्रेड कर सकते हैं। तो जो काम फेयर ट्रेड फोरम इंडिया ग्रास रूट लेवल पे कर रही थी अब तक, हमने कोशिश किया कि कैसे स्टूडेंट्स को, कैसे विद्यार्थियों को, एकेडमिक जो फेटर्निटी है उनको साथ में जोड़ करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के जाया जाए। और ये शायद एक पहली बार, मुझे नहीं पता है कि इसके पहले भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार एक फॉर्मल तरीके का एक MOU बन रहा है यूनिवर्सिटी का और फेयर ट्रेड फोरम जो ग्रास रूट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक और भी मानना है कि आज देश की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निवारण जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, चाहे आप अर्बन पलायन को ले ले, अर्बन माइग्रेशन को ले लीजिए, या बेरोजगारी की जो समस्या है, या फिर आप महिला सशक्तिकरण का है, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने का है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को या आत्मनिर्भर भारत की बात करें, वोकल ऑफ लोकल की बात करें, ये सबका निवारण जो है वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में है। और आई थिंक इट इज़ गुड कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और दूसरी जो एकेडमिशिया है, वो दोनों मिल कर के ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि ये एक जो पहल है शायद आगे बढ़े। स्टूडेंट्स भी जो देश का जो एक विज़न है, देश की जो एक प्राथमिकता दी जा रही है रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, आर्टिसंस को बढ़ाने के लिए, उसमें शायद हम लोग कामयाब होंगे।